संविधान दिवस के संदर्भ में आयोजित आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ हैं माननीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। माननीय मंत्री महोदय, आपका हार्दिक स्वागत है। मैं माननीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के मंत्री श्री किरण रिजिजू जी एवं विधि एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। इस प्रेस वार्ता में उपस्थित आप सभी का भी स्वागत करता हूं। संस्कृत कार्य मंत्रालय के सचिव श्री उमंग नरूला जी, संस्कृति मंत्रालय संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव अरुण नरूला जी, संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री अरुणीश चावला जी और संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती उमा नंदुरी जी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रारूप इस प्रकार होगा। सर्वप्रथम संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री अरुणीश चावला भारतीय संविधान को अंगीकृत किए जाने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक पीपीटी प्रस्तुत करेंगे। इसके पश्चात माननीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी अपना संबोधन देंगे। माननीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के मंत्री श्री किरण रिजिजू जी भी आपको संबोधित करेंगे और तत्पश्चात माननीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी अपना संबोधन देंगे। इसके बाद प्रश्नोत्तर का सेशन होगा। अब मैं संस्कृति सचिव श्री अरुणीश चावला जी से निवेदन करता हूं कि वे पीपीटी प्रस्तुत करें। Honorable ministers and our friends from the media. As my colleague just mentioned, Government of India has decided to commemorate the 75 years of the adoption of the Constitution of India in a big way. Next. As you know, this year marks the 75th anniversary of the adoption of our Constitution, and Government of India is commemorating this occasion with a year-long celebration across the country starting on 26 November 2024. Next. The focus of this initiative is to highlight the foresight of the makers of our Constitution and the tremendous effort that has gone into making what we today know as the Constitution of India. Next. The celebration and the commemoration of the 75th year will give an opportunity for the citizens to appreciate the calligraphed version of the Constitution. Normally, we get to see the books that are sold on the shops, and that is what we get to read in schools. The website will display the calligraphed version, which is the original version of the Constitution. We will also make true copies and display it prominently in every state capital. In addition to that, the art and calligraphy of the Constitution has been researched on this occasion by the experts in the Ministry of Culture, and that booklet will also be issued on this occasion, will be available on the website, and will also be part of exhibitions all across the country. This occasion will give us an opportunity to be aware of the full scale and scope of this visionary documents. The citizens will be able to read the preamble, upload it on the website, and earn a certificate. And in that process, connect with the heart and soul of our Constitution. We'll also celebrate the dynamic nature of the Constitution of India and how it has helped India evolve as a polity, as a society, and as an economic powerhouse. Next. Next. Friends, the activities during this year-long celebrations
have been divided into 4 parts, 4 themes: Preamble of India, Know Your Constitution, the Making of Our Constitution, and the Glory of Our Constitution. Next. First, the mass reading of the preamble. People across the country will be able to read the preamble to our Constitution in both online and offline modes as per their convenience in the language of their choice. And this, I will explain very briefly how this will work, what is the campaign website, and how everyone sitting where they are can do it on their phones, laptops, computers, whatever they have access to. The rollout of the preamble will be done in all panchayat offices, in schools and other prominent places. Next. The second theme is Know Your Constitution. And for this, we'll be organizing special sessions and assemblies in all schools, colleges, and institutions. There will be Gram Sabhas in every village, particularly the SC/ST dominated villages. There'll be seminars and panel discussions. And for everyone to participate in competitions, the MyGov website, which houses all such competitions, will have a special page for this commemoration where quiz, essays, and other competitions on the Constitution will be put out. Next. We are using this commemoration to do more research into the making of the Constitution. As you know, Constitution has already been translated into many languages. Tomorrow, Her Excellency the President of India will also inaugurate 2 copies of the Constitution in Sanskrit and Maithili. All the debates of the Constituent Assembly will be put on the campaign website. And during the course of the year, these debates will be translated into the scheduled languages in the Constitution. The reports of all the committees which went into the making of our Constitution, all these reports will be made available on the campaign website for people to read, understand, and research. We'll also be organizing model constituent assemblies in colleges and institutions on the pattern of model United Nations that most academic institutions know of. Next. Friends, this occasion will also be used to commemorate and celebrate the people involved in the making of our Constitution. This will include the prominent members of the Constituent Assembly, the members of various committees, their chairpersons, the members representing various segments of our society, particularly the women members. And there will be events organized at their birthplace and the landmarks in their journey. And we would also be looking and researching into their thoughts, their ideals, and coming out with dedicated outputs and brochures and write-ups on what they thought and envisioned a modern India to be. Next. As you know, these are the prominent constitution makers whose effort, whose vision, whose ideals went into the making of our Constitution. There are many more. In each state capital, tomorrow, the functions, ceremonies will be organized, where they will remember not just the makers of Constitution at the national level, but the makers of the Constitution which come from their state, and they will commemorate during the course of the year the places which are connected to the makers of the Constitution, including the women members of the Constitution. Next. The fourth theme is the glory of the Constitution. The Gram Sabhas will be organized in every village, special Gram Sabhas, to read the preamble, to highlight the Constitution, including fundamental rights and fundamental duties. There will be a special fortnight of events around the Baba Saheb's birth anniversary, and this will be organized at all the prominent places connected with his life, like Mao, Mumbai, London, and Delhi. There will be Swabhiman Yatras organized by the volunteers throughout the country,
As you know, the first the Constitution run was organized today morning, in which the honorable ministers took an active part. Next. Friends, tomorrow will be a grand celebration in the Central Hall of Parliament, where which will be led by Her Excellency the President of India and our Honorable Prime Minister. And on this occasion, there'll be a mass reading of the preamble. A special coin and stamp will be released. The books prepared by Ministry of Law and Justice on the making of the Constitution and the art and calligraphy of the Constitution, a special booklet will also be released to highlight the effort of those artists who worked very hard to produce the beautiful Constitution that we know today. Next. This is just a glimpse on this special project called Art of the Constitution, which has been successfully completed and will be unveiled tomorrow. Next. I'll just end with a brief introduction of the website, the campaign website, and where everyone, the mass website where everyone will log in. It is simply called Constitution 75. You can just type constitution75.com on your Google or the search engine on your phone, laptop, and you will land straight onto this website. It will be the first entry on the web page. The website will look like this: Hamara Samvidhan, Hamara Swabhiman. Next. And this website will have the Constitution available in various languages. It will have the preamble in all scheduled languages. It will also have the debates of the Constituent Assembly, and it will also have the reports of the various committees. All this has been obtained, researched, dug out, and will be on display tomorrow. Next. Friends, this is what the landing page will look like. And if you see below the Constitution, there is a button called Participate. And below the button is written, read the preamble and receive the certificate. So every citizen, when he types Constitution 75, this will come the first thing on the Google page. Just click on it. This is where you will reach. And on the first page on top, you will see this, and you will see that button which is called Participate. When you press that button, next, you will come on this page, and this page gives you 4 simple steps. Enter your details, just your name, where you are. Record your video, then a preamble will come. You have the choice to select the language you want to read it in. Select the language, read the preamble. It will record you reading the preamble. Step 3, press the button, just upload it, and you can download a certificate individualized to your having participated in this great commemoration. Next. This is what it will look like when you enter your name and page. So that's all you need to enter. There is no login, nothing. You just press the button, a camera screen will appear. You select the language, you read the preamble in your language, it will record it. Just press the button, it will upload, and you download the certificate. Next. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच फॉर नाइस प्रेजेंटेशन. अब मैं माननीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी से निवेदन करता हूं कि वे आप संबोधित करें. नमस्कार साथियों, मुझे 2-3 चीज़ें ऐड करनी है. हमारे चावला साहब ने जो चीज़ें बताई, उसमें जो ऐड करने लायक मुझे विषय लग रहा है वो ये है कि 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लेकर के संविधान का सम्मान करना और बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब का सम्मान करना, ये उनके कार्य पद्धति का हिस्सा रहे हैं. आपको एक डेट याद दिलाता हूं, 19 नवंबर 2015. इससे पहले इस देश में 26 नवंबर को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था.
ऐसा नहीं है कि ये दिवस मनाया नहीं जाता था। ये कानून दिवस के रूप में, जिसको हम लॉ डे कहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में कोई फंक्शन हो गया या कहीं और किसी हाई कोर्ट में हो गया, इसके अलावा इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं था। लेकिन 19 नवंबर 2015 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से एक नोटिफिकेशन जारी होता है और उसमें लिखा रहता है कि बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी की 125वीं जयंती के अवसर पर सरकार ये निर्णय लेती है कि आने वाले समय में 26 नवंबर का दिन प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये महत्वपूर्ण निर्णय था नरेंद्र मोदी जी का। उसके बाद अभी आपको जो जानकारी दी गई, उसमें बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी से जुड़े हुए स्थानों का विकास, ये भी नरेंद्र मोदी जी के इसी कालखंड में हुआ, जिसको हम पंच तीर्थ कहते हैं। जहां उनका जन्म हुआ महू, जहां उनका संस्कार हुआ चैत्य भूमि मुंबई, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली 26 अलीपुर रोड दिल्ली, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया नागपुर, और जहां लंदन में उन्होंने पढ़ाई की अंबेडकर हाउस। ये जो 5 स्थान जो विकसित हुए हैं, और ये भी नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में ही हुए हैं। इसलिए मैं कुछ चीजों को इसको ऐड करने के साथ, अब कल का जो फंक्शन है वो महत्वपूर्ण फंक्शन है। 75 वर्ष संविधान को अडॉप्शन के पूरे हो रहे हैं। पूरे साल भर ये हमारा कार्यक्रम चलेगा, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। हम इसको हर जिले में ले जाएंगे, हर गांव में ले जाने का प्रयास करेंगे, हर तालुका में ले जाएंगे, और वहां प्रस्तावना का पाठ होगा। और इस संविधान के निर्माण में बाबा साहब और उनकी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों का क्या क्या योगदान था, वो हम जनता को बताएंगे। और उसमें जो 15 महिलाएं थी संविधान सभा की सदस्य, उनका क्या क्या योगदान था और कहां कहां से वो आती थी, वो भी हम उनको बताएंगे। आपने जैसे कहा हमारे अभी चावला साहब ने कि कल संस्कृत और मैथिली में भी संविधान का जो ट्रांसलेशन हुआ है, इन बुक्स का भी जो है लोकार्पण होगा। 2 पुस्तकें, संविधान बनाने की जो प्रक्रिया कैसे रही थी और हमारा जो संविधान बनाने में जो भूमिकाएं जिन जिन की थी, उनको लेकर के 2 पुस्तिकाएं, उनका भी कल लोकार्पण होगा सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति जी के द्वारा। और जो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी जो महत्वपूर्ण हमारे संविधान के आधार स्तंभ रहे हैं, उनकी जानकारी भी हम साल भर देंगे। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जो जस्टिस की बात करते हैं संविधान में, हमारी प्रस्तावना में, उनकी जानकारी भी हम जनता को देंगे। और व्यक्ति की गरिमा, उसमें बाबा साहब के क्या विचार थे, उनकी जानकारी भी हम देंगे। देश की एकता और अखंडता हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, ये सारे विषयों की हम जानकारी देंगे इस पूरे कार्यक्रम में। मुझे इतना ही कहना था। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के मंत्री श्री किरण रिजिजू जी से अनुरोध करता हूं कि वे संबोधित करें। 75 years of the adoption of the Constitution in India is a very big event. हमारे लिए एक खुश नसीब की बात है कि हमारा समय में हम लोगों को भारत के संविधान का 75 वर्ष पूरा होने पर पार्लियामेंट में इवेंट में हिस्सा लेने के लिए मौका मिल रहा है। राष्ट्रपति जी के कल उद्बोधन होगा और दोनों हाउस के, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स का जॉइंट सिटिंग संविधान सदन में होगा और उसमें 75th years ऑफ द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सेलिब्रेशन यहाँ दिल्ली में होगा। और साथ साथ में देश में हर एक जगह अलग अलग कार्यक्रम
कई जगह में किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग उसी सदन में बैठेंगे जहां कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिटिंग हुए थे और कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया था, इसलिए ये ऐतिहासिक पल है। मैं मानता हूं कि इसमें सिर्फ जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का ये इवेंट नहीं है, ये हर एक भारतीय, हर एक भारत के नागरिक सबको मिल करके संविधान दिवस में शरीक होना है, दिल से मानना है और प्रियम्बल को पढ़ना है। ये महत्वपूर्ण बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 में एडॉप्ट हुआ। उसके बाद हमारा देश को एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी, ए वाइब्रेंट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के रूप में कायम किया है। अगर ये संविधान इस रूप में नहीं मिलते तो भारत देश आज पूरा दुनिया में लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, मोस्ट वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी, सब अलग अलग तरीके से भारत के जो डेमोक्रेटिक सेटअप, हमारे सिस्टम प्रोसेस को सराहना करते हैं। ये क्रेडिट जाता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो उस समय जो लोग फाउंडिंग फादर्स हैं, मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सब लोग का योगदान है। इसलिए जो कई किताब निकल रहे हैं, उसमें सेक्रेटरी कल्चर ने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया। अगर हम लोग थोड़ा सा समय दे करके जो किताब पब्लिश करने जा रहे हैं, कल रिलीज करने जा रहे हैं, अगर थोड़ा ध्यान दे करके किताब को पढ़ेंगे, देखेंगे, तो कई ऐसे चीजों का पता चलेगा जिसका नजरअंदाज किया गया था। पार्लियामेंट का आर्काइव से, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का, भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, अलग अलग जो हमारा सरकारी आर्काइव्स होते हैं, वहां से सारा डॉक्यूमेंट्स निकल करके जो किताब के फॉर्म में निकल के आ रहे हैं, ये मैं मानता हूं कि बहुत आगे जा करके सब इस किताब को रेफर करेंगे, क्योंकि नॉर्मल संविधान का किताब तो आपको दुकान में भी मिल जाएंगे, लेकिन संविधान बनाने के पीछे द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसका जो इमोशन, सेंटिमेंट, बैकग्राउंड में हमारा उसमें इंस्पिरेशन कहाँ से आया, भारत के सभ्यता, कल्चरल हेरिटेज, एंशिएंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स को कैसे करके संविधान के पार्ट पार्ट में मेंशन करके, चित्र का आर्ट के फॉर्म में किस तरह से फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कैसे करके जोड़ा है, वो सारा एक पिक्टोरियल फॉर्म में भी आएंगे, आर्ट फॉर्म में, और आपको थोड़ा सा पढ़ने के लिए भी दो तरीके का किताब है। एक तो स्टेटिस्टिकल एंड पिक्टोरियल टाइप है, दूसरा मोर एक्सप्लेनेटरी एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा नैरेटिव्स दिया हुआ है। और आजादी के बाद अब तक बड़ा बड़ा क्या क्या संशोधन हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सारा आप बहुत अच्छी तरह से किताब में देखने को मिलेंगे। इसलिए आपके माध्यम से देश के हर एक नागरिक को हम कहना चाहते हैं, ये सिर्फ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का सेलिब्रेशन नहीं है, ये देश का सेलिब्रेशन है। एक तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इज्जत दे करके उसके अंदर का चीजों को लोगों के सामने में ले जाना है। दूसरा, संविधान निर्माताओं को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वी आर पेइंग ट्रिब्यूट्स टू द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेलिब्रेट द ग्लोरियस 75 years जर्नी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये साल भर चलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का बहुत और कार्यक्रम इसको रचना किया है, अभी गजेंद्र जी भी बताएंगे। ये साल भर का कार्यक्रम है। मैं कल जब दोनों सदन के सदस्य को राष्ट्रपति जी संबोधित करेंगे, उसके बाद मैं मानता हूं कि ये कोई पार्टीबाजी नहीं होकर के, कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई इस गुट उस गुट का नहीं, एक भारतीय होने के नाते हम
संविधान दिवस को मनाएंगे। 2015 से मनाने का प्रक्रिया शुरू हुआ और कल का सेलिब्रेशन के बाद वो 1 साल का सेलिब्रेशन का कार्यक्रम जो रखा है, और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए संविधान को इज्जत रखते हुए, संविधान को मानते हुए संविधान दिवस को बहुत अच्छी तरह से मनाएंगे, ये मैं उम्मीद रखता हूं। मैं डिटेल में नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि आप सवाल पूछेंगे तो फिर हम उसमें जवाब देंगे, लेकिन हम सब खुशकिस्मत हैं कि इस 75 इयर्स ऑफ जर्नी में हमने इतिहास भी देखा है और 75th ईयर्स का जो सेलिब्रेशन में हम हिस्सेदारी है। आज शाम को आदरणीय राष्ट्रपति जी के पास जा करके उसको हम इनविटेशन दे के आएंगे। कल के लिए, कल का इवेंट के लिए उसको हम आमंत्रित करेंगे और फिर कल आप सबसे आमंत्रित भी हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं कि इस संविधान दिवस को बहुत ही अच्छी तरह से हम प्रचार प्रसार देश के हर एक नागरिक के पास ले जाने में आपका योगदान चाहिए। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से अनुरोध करता हूं कि वो प्रेस को संबोधित करें। धन्यवाद मित्रों। भारत के संविधान को अंगीकृत करने के 75 साल पूरे होने के इस सौभाग्यपूर्ण अवसर पर वर्ष भर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में कल से जो कार्यक्रम प्रारंभ होंगे उनके इस कर्टन रेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए माननीय मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, आदरणीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, सम्मानित अधिकारीगण और प्रिय पत्रकार बंधुओं बहनों, आप सबका मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। आप सबको इस प्रेस वार्ता में आने के लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसा आदरणीय किरण रिजिजू जी और आदरणीय अर्जुन राम जी ने कहा, यह हम सब के लिए एक सौभाग्य का अवसर है कि आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जिस तरह से वर्ष पर्यंत आजादी का अमृत महोत्सव ऐसा हमने सेलिब्रेट किया, उसी श्रृंखला में संविधान जो हम सबका स्वाभिमान भी है, भारत का संविधान जो केवल मात्र एक कानूनी दस्तावेज होने के बजाय लोकतंत्र, न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की मूर्त भावना को हम सब के बीच में मूर्त रूप देने वाला एक जीवंत दस्तावेज है। उस दस्तावेज के 75 को अंगीकृत करने, जिसके आधार पर हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र ऐसा पहचान बनाने में अपने सफल हुए, जिस संविधान के अनुरूप काम करते हुए आज 75 साल में भारत प्रगति करते हुए इस मुकाम पर आकर के पहुंचा है कि पूरे विश्व भर में भारत का मान और सम्मान बढ़ा है। उस संविधान के 75 साल पूरे होने का अवसर, सामान्यतः किसी व्यक्ति के जीवन में 75 साल बहुत बड़ा समय होता है, लेकिन एक देश और देश के लिए, और एक ऐसा देश जिसका हजारों वर्षों का इतिहास रहा हो और आने वाले हजारों सालों तक जो व्यवस्था इस देश में रहने वाली है, उसके लिए 75 साल का कालखंड कोई बड़ा अवसर नहीं। लेकिन निश्चित ही 75 साल का यह अवसर हम सब लोगों के लिए एक इंट्रोस्पेक्शन का अवसर अवश्य है कि पूरा देश इसके साथ में जुड़े, इस भावना के साथ में कि जो दूरदृष्टा संविधान निर्माता थे और उनकी जो दीर्घ दृष्टि थी, जो फारसाइटेडनेस थी, जिसके आधार पर उन्होंने संविधान की रचना की, न केवल रचना की अपितु विश्व का सबसे जीवंत और सबसे विस्तृत संविधान बनाने में ऐसी सफलता प्राप्त की। न केवल संविधान का निर्माण किया अपितु आने वाले भारत के भविष्य की आधारशिला भी उसके आधार पर रखी। पूरा देश उसके साथ में जुटे। इस दृष्टिकोण से सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में संविधान को अंगीकृत करने के 75 वर्ष के इस अवसर पर वर्ष पर्यंत देश भर में विभिन्न कार्यक्रम हो। उन कार्यक्रमों का आगाज कल से होने वाला है। जैसा आप सबके सामने
संस्कृति सचिव श्री अवनीश चावला जी ने अपने डिटेल प्रेजेंटेशन में जो बातचीत कही है उनको बहुत ज्यादा नहीं दोहराते हुए मैं सिर्फ इतना अवश्य आपके सामने कहना चाहता हूं कि एक ऐसा अवसर है जो हम सब के लिए, जिस तरह से संविधान में हमारे कर्तव्यों की चर्चा की गई, हमारे अधिकारों की चर्चा की गई है, इस अवसर पर हम सब का ये कर्तव्य है कि हम देश के अधिकतम लोगों को किस तरह से उसके साथ में जोड़ सके। संविधान निर्माताओं की दृष्टि, उनकी अपेक्षा और उनकी मंशा, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट के माध्यम से उनका इंटेंट ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन या पर्टिकुलर क्लॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, इसको लोगों के बीच में एक बार फिर ला सकें। इस दृष्टिकोण से साल भर कार्यक्रमों का आयोजन इस दिशा में होने वाला है। कार्यक्रमों की रूपरेखा के बारे में आदरणीय संस्कृति सचिव ने आप सबके सामने विषय रखा है। हम एक वेबसाइट संविधान 75 नाम से 75.com नाम से जो बनाएंगे, जिसकी चर्चा उन्होंने विस्तार से की है कि किस तरह से देश का प्रत्येक नागरिक उसके साथ जुड़ करके संविधान के प्रीएम्बल को पढ़ते हुए अपना वीडियो अपलोड करके उसका सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकेगा। संविधान पर एक लघु फिल्म बना करके या मल्टीपल फिल्म्स बना करके किस तरह से संविधान निर्माताओं की दृष्टि क्या थी, उसके बारे में और अधिक लोगों के साथ लोग जुड़ाव महसूस कर सकें, बेहतर दृष्टिकोण से समझ सकें। इस दृष्टिकोण से संविधान के निर्माण की उस यात्रा और यात्रा के पीछे भाव, इसके पीछे जो है विस्तार से लोगों के सामने लाया जा सके, फिल्म का निर्माण किया जाएगा। जैसा अभी प्रेजेंटेशन में दिखाया गया था कि संविधान में, और अभी आदरणीय कानून मंत्री जी ने भी चर्चा की कि मोटे तौर पर लोगों को संविधान की पुस्तक जो मूल रूप में है उसके बारे में शायद अब संज्ञान नहीं है। उसमें कितनी सुंदर कैलीग्राफी भी हुई और साथ साथ में इतना सुंदर आर्ट वर्क भी उस समय के देश के ख्यातनाम चित्रकारों ने किया है। भगवान राम के जीवन से जुड़े हुए प्रसंग, हनुमान का लंका विजय का प्रसंग, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर स्वामी, इन सब के जीवन से जुड़े हुए विषय और भारत की सभी थातियों को चित्रों के माध्यम से संविधान की पुस्तक में उल्लेखित किया गया। उस आर्ट को सम्मान देने के लिए और साथ साथ में उन जिन आर्टिजन्स ने उस आर्ट को बनाया था, उन कलाकारों का भी सम्मान करने के दृष्टिकोण से ऐसी एक पुस्तिका की रचना संविधान से उन चित्रों को लेकर के कंपाइलेशन संस्कृति मंत्रालय ने किया है। उसे जन जन तक पहुंचाने के दृष्टिकोण से जो कमेमोरेशन स्टाम्प जारी होगा, जो कमेमोरेशन की सिक्का जारी होगा, उसको जारी करने के साथ साथ में हमने एक एआई चैटबॉट, क्योंकि आदत है तब हमारे संविधान को अधिकतम लोग अपने दृष्टिकोण को उसमें खोज सकें, इस दृष्टिकोण से एक एआई चैटबॉट हमने डेवलप किया और उसे हम उसमें प्रश्न करें और उस प्रश्न का हमें ठीक से उत्तर मिले, क्योंकि उत्तर को देने के दृष्टि और वर्ष पर्यंत चलने वाले इस स्मरणोत्सव में सांस्कृतिक प्रदर्शनियां होंगी, ऑडियो संदेश विभिन्न रेल यात्राओं के समय, विभिन्न हवाई यात्राओं के समय हमारे संविधान से जुड़े हुए विषयों को लेकर के पहुंच सकें। इस दृष्टिकोण से हवाई अड्डों के अनाउंसमेंट में, रेलवे स्टेशन के अनाउंसमेंट्स तक उस विषय को ले जाया जा सके ताकि अधिकतम लोग संविधान के साथ में जुड़ सकें। संविधान सभा का, जैसा माननीय मंत्री जी ने अभी आप सबके सामने चर्चा करते हुए कहा कि संविधान सभा में डिबेट के समय डिबेट करने वाले लोगों की मंशा क्या थी, क्या भावना थी उन्हें, उनकी उस पर्टिकुलर क्लॉज को जो है इनेक्ट करने को लेकर के, उसे संविधान का हिस्सा बनाने को लेकर के, उस भावना को लोगों तक समझना, किन लोगों ने अपने विचार किस दृष्टिकोण से उस विषय के लेकर के रखे थे, उस विषय के पक्ष और विपक्ष में कौन कौन लोग थे, देश को आज इस बात को जानने की आवश्यकता है। उन वाद विवादों का डिजिटलीकरण करके, उनका नाट्य रूपांतरण करके विभिन्न एजुकेशन इंस्टीट्यूट में उनको जो है उनको प्ले किया जाए, इस दृष्टिकोण से भी हमने रचना की है। संविधान से जुड़े हुए विषयों की सांस्कृतिक प्रदर्शनी पूरे देश भर में अनेक स्थानों पर हो, विभिन्न एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हो, इसकी व्यवस्था की है। संविधान का अनुवाद, जैसा कहा गया कि संस्कृत और मैथिली में कल सम्मानीय प्रधानमंत्री जी उसे जारी करने वाली है। जैसा सम्मानीय प्रधानमंत्री जी हमेशा इस बात को कहते हैं कि मेरी मातृभाषा जो है मेरी मां स्वरूप है,
मातृभाषा को सम्मान देते हुए संविधान को अधिकतम लोग अपनी मातृभाषा में समझ सकें, इस दृष्टिकोण से संविधान का विभिन्न लैंग्वेजेस में जो है वो संविधान और संविधान सभा की डिबेट्स का भी विभिन्न लैंग्वेजेस में जो है ट्रांसलेशन करने का काम भी इस दृष्टिकोण से होगा। इन सब के साथ साथ में अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वर्ष पर्यंत ये जो श्रृंखला कार्यक्रमों की चलेगी, इस श्रृंखला के चलते हुए हम संविधान को अधिकतम लोगों तक एक बार फिर नए सिरे से ले जा सके, इस विषय को लेकर के हमने इस साल भर के कार्यक्रमों की रचना की है। मैं आप सब मीडिया के मित्रों से भी इस बात का आग्रह करता हूं कि क्योंकि संविधान हम सब का साझा संपत्ति है, हम सब की साझी विरासत है, हम सब का साझा स्वाभिमान है, और साथ साथ में संविधान इस 75 साल के लेकर के 100 साल के बीच का ये कालखंड, जैसे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल की संज्ञा दी, जिसमें देश के 140 करोड़ लोग संकल्पबद्ध होकर के भारत को विकसित भारत, भारत को समर्थ भारत, भारत को संपन्न भारत ऐसा बनाने के लिए जुटे। उस महत्वपूर्ण कालखंड में संविधान हम सब लोगों के लिए संकल्प का, विकास के संकल्प का अधिष्ठान भी है। इस अधिष्ठान की यात्रा के साथ में आप सब लोग जुटे। ये constitution75.com जो वेबसाइट बनाई है, इस वेबसाइट की शुरुआत आप और आपको पॉपुलराइज करने के लिए आप अपने मीडिया प्लेटफॉर्म, प्रिंट का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेब मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी है, उन सब में आप उसको पॉपुलराइज करने के लिए सहयोग करें, ऐसा विनती करते हुए जो इंटरैक्टिव फीचर्स इसमें बनाए गए हैं, एआई चैटबॉट को पॉपुलराइज करने को लेकर के आप सब लोग सहयोग करेंगे, ऐसी आप सबसे अपेक्षा करते हुए हम अपने स्वाभिमान स्वरूप संविधान को जन जन तक पहुंचाने के लिए सब लोग सम्मिलित प्रयास करें। आप सब इसमें इसके लिए यहाँ शरीक हुए, मैं आप सबका हृदय पूर्वक एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। नाउ फ्लोर इज ओपन फॉर द क्वेश्चंस। 125। My question to अपना you is परिचय दें, about अपना परिचय दें और फिर अपने संस्थान का नाम भी कृपया से। Arunima from CNN News 18. My question to you about is the objection that was raised by the Congress and the opposition parties, questioning why the leader of opposition is not being given a chance to speak or be on the dais for tomorrow's event. Has the government taken note? How is this matter being resolved? Leader of ruling The problem with the opposition parties, some of the opposition parties is without knowing the actual arrangement, they started giving their reaction. Honorable Prime Minister is not even speaking tomorrow in the function. Honorable Speaker, Vice President and the President of India will speak. Secondly, we have made arrangement for sitting of the leader of opposition, both Lok Sabha, Rajya Sabha in the dais. Without knowing anything, this kind of reaction on a very solemn occasion itself is condemnable. 79। As I have stated that it is a movement of solidarity, and the people who have the mindset of divisive politics, they have started playing their role and start playing their music. So we that is our request to all of you, that the clear picture and the right picture should go to the public and to the people of India. नमस्कार, मेरा नाम सर्जना शर्मा है, मैं सनमार्ग से हूँ। मेरा सवाल माननीय केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू जी से है। सर, आपने अभी एक बात कही कि मुझे उम्मीद है कि हम इसमें पॉलिटिक्स नहीं करेंगे और भारतीय होने के नाते इस समारोह को मनाएंगे। कहीं आपको ये आशंका तो नहीं कि विपक्ष इसका बहिष्कार कर सकते हैं? इसको बहिष्कार करने का अगर कोई सोच भी सकता है तो आप ये समझ जाएंगे कि वो संविधान के प्रति कितना संवेदनशील है। ये एक, जैसे मैंने कहा, एक बहुत सोलेम ओकेजन है, बहुत पवित्र दिवस है। इस दिन राजनीतिक तो दूर दूर तक भी आपका सोच में नहीं आने चाहिए। ये मिल करके पूरा देश को संविधान दिवस मनाने का दिन है, और इस दिन राजनीति को पीछे छोड़िए और देश के लिए सोचिए। संविधान के प्रति संकल्प लेकर के इसको और जन जन तक पहुंचाने का जो विचार है उसको सब मिलजुल के करें। इसलिए कल के दिन में कोई बॉयकॉट का तो सोच भी नहीं सकता है, और ऐसा होता भी नहीं है। और ये पॉलिटिकल फंक्शन नहीं है, ये दोनों सदन एक साथ बैठ करके
देश का महामहिम राष्ट्रपति जी आएंगे और संबोधित करेंगे। 247 at the back. Good afternoon, sirs. Aditi Agrawal from Hindustan Times. I want to know how much is the government of India spending on this year-long program? Second, why is the Constitution 75 website a .com website and not a .gov.in website? And third, with the AI chatbot, are there any red-lined areas, any questions that the chatbot will not answer? The chatbot is limited up to the content and intent of the Constitution. So the questions beyond the Constitution, they are not going to be answered by the AI, but the AI has been designed to answer all your queries about the Constitution. As far as the spending is concerned, I think the officers are sitting here, they will be able to give you better clear picture. This commemoration will be done in a whole of the government approach. All departments of the government of India will be doing these activities from their respective budgets. Similarly, at the level of the state, the level of the district, urban bodies, rural bodies, and institutions, these activities are not some very expensive activities. They are very simple, ordinary activities. What is more important is the thought behind it, the emotion, the feelings. It is an occasion to just connect with the ideals and the soul of the Constitution. Thank you. Sir, and the question about why it's a .com website instead of being a .gov.in website, and to Mr. Shekhawat's answer about the AI chatbot, who is your partner for developing this AI chatbot? I think that is not relevant in the question. Relevant that who is one the partner. question It's a at a time, technical please. support. Who Number 16, please. बहुत धन्यवाद, आपने संविधान को कम से कम प्रमुखता दी है। रिजिजू जी से एक प्रश्न ये था कि ये जो सुझाव है, प्रश्न नहीं है, सुझाव है। थोड़ा सा जोर से बोलेंगे आप? थोड़ा सा जोर से, क्लियर। थोड़ा नजदीक कर लीजिए आप मुंह के। हेलो, इसमें बहुत ही ऐतिहासिक कदम लिया है आपने, ये बहुत ही तारीफ की बात है। रिजू जी, आपने इसमें बहुत अच्छे सुझाव भी दिया है, लेकिन जब तक इसको स्कूल लेवल पे चाइल्ड एजुकेशन से लेके टिल सीनियर सिटीजन्स तक के अपने संविधान का ज्ञान उसके सिलेबस में डाला जाए, और इस पे एक सुंदर, जिस तरह से आपने प्रेजेंटेशन दिया, एग्जीबिशन लगाएंगे, ये लगाएंगे, वो एक सस्टेनेबल नहीं हो पाएगा। एक फिल्म बननी चाहिए और जो इसमें पार्टिसिपेंट थे उनके ऊपर उसकी सक्सेस स्टोरी बने, ये सुझाव है, और इसको सिलेबस में डाला जाए। दूसरा था कि एआई जैकपॉट, इस तरह जो संविधान का ज्ञान सबको हो, एक महिला जो फिल्म इलिटरेट है उसको भी कैसे इसकी जानकारी मिले, इसका एक व्यवहारिक अभी तक इसमें बता नहीं पाया गया है, लेकिन उस पर एक सुझाव भी मांगा जाए। आपके पोर्टल पे एक पोर्टल बने इस पर, और उस पर सुझाव भी मांगा आप कि कहाँ कहाँ इसमें और बेहतर हो सकता है। धन्यवाद। देखिए, एक सुझाव है, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, हमारा जो प्रैक्टिकल लोगों के बीच में जाके सेलिब्रेशन करने का जो इवेंट के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से जो करने का है, वो भी जरूरी इसलिए है कि एक माहौल, महोत्सव का माहौल बनाना है। दूसरा, जो लिटरेचर, पैम्पलेट्स, डॉक्यूमेंट वगैरह जो हम लोग निकाल रहे हैं, वो भी इसलिए ज़रूरी है, प्रमाणिक हम लोगों के पास में ले जाना है। एकेडमिक दृष्टि से जो आपने कहा है, खास करके स्कूल के एकेडमिक बुक्स में इसका जिक्र होना चाहिए। मेरे ख्याल से जो हमने जो पढ़ा है, बेसिक तो है, आप जो सोशल साइंस का स्टडी करते हैं उसमें तो है, लेकिन जो बुकलेट अभी तो हम नहीं बता सकते क्योंकि उसका रिलीज कल ही होंगे। जो बुकलेट 4-5 निकालने वाले हैं, जो ट्रांसलेशन भी हो रहे हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आप बहुत अच्छी तरह से जो संविधान बनाते समय प्रक्रिया, कौन कौन लोगों का क्या भूमिका और उसके पीछे क्या सोच और चित्र के साथ में वो स्कूल बच्चों को और आगे
किसी भी लेवल में काम आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एकेडमिक कैरेक्टर नहीं है उसमें। वो एक बहुत ही आसान भाषा में हर एक आदमी पढ़ के समझ सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश में तो कल रिलीज करेंगे, और भी रीजनल भाषाओं में भी आगे उसका पब्लिकेशन होगा। लेकिन स्कूल वाला जो मामला आपने सुझाव दिया, ये बहुत अच्छा है, उसको और आगे बढ़ाना चाहिए। 93. Hello, sirs. This is Aditi Tandon from the Tribune. I just wanted to know, all the honorable ministers have said that there will be a detailed, elaborate work that will be unveiled tomorrow on the intent behind a lot of debates in the Constitution Assembly. Especially, Gajendra ji, if you can take this question. You said that controversial issues, who said what on what issue. Can you just give us a brief on what kind of big issues will you address? Because Constituent Assembly debates are very expansive. On controversial issues, important issues, उसको लेकर के during the debate, who said what? The country and the people of country are having all the rights to understand and to know that when the discussion was happening over reservation, amongst the members of Constituent Assembly, who said what? What was the idea and concept of the particular person who was taking part in the Constituent Assembly's debate? The people must know. So we are tried out some of those type of subject matters where the discussions had gone, but in detail, person, if he wish to understand, he can go, and if the interest is being inculcated, so they can go and read the entire debates of the Constituent Assembly, which is available in more than 15 volumes. Just to add to that, not to take a turn into a note of controversial, we are not publishing anything from our side. Anybody can go and see the entire proceedings of the Constituent Assembly. What we are doing is, from the archives, bringing out, unless we do it, people are not voluntarily going into the archives and knowing what happened. So on the important chapters, for example, women reservation, it has happened as recent as last year. But it is a very important amendment of the Constitution of India, which we must refer during this 75 years of glorious journey of the Constitution. What are the major changes within the Constitution provisions had taken place? These we are bringing forth before the people. So, for example, the 73rd Amendment or 42nd Amendment, or there are many important, we can't bring, say, everybody can go and read themselves. What we are doing is making easy for the people to know those important things which had happened. Similarly, during the Constituent Assembly debates, everybody knows the debates and discussion had extensively took place, but we are bringing out some of the important things which must be brought into the public domain so that people can easily pick up that book and then read it. So as I said, I'm repeating it, it is not a book we are writing and giving opinion. It is bringing out what had happened in an easier format so that people can read and learn it. 240. I, Harish Upadhyay from Readers Mason News Network Group. Sir, it is assumed and there is strong possibilities that the leader of opposition of parliament will be there, will be tomorrow's function. As mostly he used to say that our constitution is in danger by raising a red book in his hand. आपका सवाल क्या है, आप बताएं ना, सवाल हाँ। बताइए, आप तो पढ़ रहे हैं कुछ। Yes. Yep. आप If- अपना सवाल। If he does the same, raising the book, how would you counter from that charge and situation? हाँ, अच्छा।
संविधान में हम सब एक है, आप चिंता मत करिए। 279 नहीं, हम होगा नहीं आप क्यों चिंता करते हैं? हेलो सर, मैं रंजीत झा समाचार जगत राजस्थान से हूँ और मेरा प्रश्न मंत्री मेघवाल जी से है। दो भाषा में जो अनुवाद किया जा रहा है या हुआ है, उसमें मैथिली में जो हुआ है उसका स्क्रिप्ट मिथिलाक्षर में है या देवनागरी लिपि में? नहीं, उसमें लिपि तो मैथिली खुद ही लिपि है ना, तो तभी तो भाषा है वो। नहीं, जनरली सर होता है क्या? हम वहीं से उसी में ही है, उसी में जो आप मिथिलाक्षर में है, जो आप बोल रहे हो उसी में ही है। ठीक। देवनागरी में 17 नंबर। सर मधुरेंद्र, मैं न्यूज़ नेशन से। चूंकि कार्यक्रम बहुत व्यापक है और साल भर तक चलने वाला है, माई साइड मेरा सवाल यह है कि समाज में जो वंचित हैं, अशिक्षित हैं और ख़ास तौर पे जो हाशिए पर हैं, जो कि डिफरेंट मीडियम्स को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, उन तक पहुंचने के लिए क्या योजनाएं हैं ख़ास तौर पे, ताकि वे लोग भी अपने संविधान के निर्माण से जुड़ सकें, अपने अधिकारों को जान सकें और उन तक भी संवैधानिक शिक्षा को पहुंचाया जा सके। देखिए, माननीय मोदी जी की सरकार वंचितों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और पिछले 10 साल में ऐसे सारे वंचितों को सशक्त करने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने जिस तरह से काम किया है, मैं गर्व के साथ में यहाँ बैठ करके कह सकता हूँ कि उसके चलते हुए 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों का जीवन बदला है। इसलिए उनका जीवन बदलना जो संविधान की संकल्पना थी उसके अनुरूप हम काम कर रहे हैं। उन तक भी संविधान पहुंचे, संविधान की समझ पहुंचे, हम हर संभव प्रयास उसके लिए करेंगे। लास्ट 2 क्वेश्चंस लेंगे। 278 सर, संविधान की प्रस्तावना पर आपका क्या कहना है कि समाजवाद का जो शब्द है उस पर और राज्य स्तर पर इसको किस तरीके से लिया जाए? पूरे साल का जो कार्यक्रम है, जो सरकारें अगर वहाँ पर नहीं है भाजपा की, तो क्या वहाँ पर राजनीति स्तर पर ये कार्यक्रम नहीं होगा या कैसे? देखिए, सरकार का कार्यक्रम सिर्फ नहीं पूरा देश का कार्यक्रम है। सरकार लीड रोल ले रहे हैं, उसमें अपोजिशन रूलिंग का सवाल नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी का सवाल नहीं है। एक नागरिक इसमें भागीदारी होना चाहिए, यही हमारा मंशा है। 68 एक मिनट, टू एड ऑन, आपने प्रियम्बल के बारे में कहा। प्रियम्बल संविधान की आत्मा है और वो हम सब के लिए, चाहे हम किसी भी राजनीतिक प्रतिबद्धता से आते हैं, उसके लिए उतना ही वंदनीय है, उतना ही प्रणम्य है, उतना ही अभिनंदन के योग्य है। इसलिए उसको लेकर के मुझे लगता है कहीं कोई राजनीति किसी भी आधार पर, कोई भी राजनीतिक प्रतिबद्धता के आधार पर संविधान को कोई प्रश्न खड़ा करके अपने अस्तित्व को चुनौती कोई नहीं देगा। इसलिए आप इसकी चिंता मत करिए। So Kunal Dutt here from PTI. I have an apolitical question. So here. Kunal from PTI. Yeah. So I have an apolitical question that Riju also said that it's going to be beyond politics and above politics. And the one aspect of this is a celebration of the artwork, the calligraphic artwork, which I believe is one of the untouched aspect of the Constitution. I would like to know from the ministers and the officials present here, what were the challenges in terms of getting the backstory of the Nandlal Bose and the other noted artists who were hired at that point of time to come up with this Constitution, celebrating the heritage of India, if that could be expounded. So it has been observed that पिछले 75 साल में जिन लोगों ने संविधान के निर्माण के समय में अपनी कला को संविधान के उस मूल पुस्तक में अलंकृत किया था, उनको हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। संविधान चिरस्थायी रहे और साथ साथ में संविधान को बनाने में योगदान करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, संविधान निर्माताओं ने जो डिबेट असेंबली में किया वहां से लेकर के संविधान को जिसने अपनी सुंदर हस्तलिपि में लिखा, कैलीग्राफिक राइटिंग में जिन्होंने लिखा, वहां से लेकर के संविधान में उत्कीर्णन करने वाले, चित्र बनाने वाले हर व्यक्ति तक की स्मृति चिरस्थायी हो और कृतज्ञ राष्ट्र के रूप में हमेशा हमेशा हम उनके लिए अपनी कृतज्ञता के भावों को व्यक्त कर सकें। इसी दृष्टिकोण से यह प्रयास किया गया। 75 साल के इस कालखंड हालांकि लंबा है, लेकिन इतना लंबा नहीं था कि उनको हम भुला सकें, उनको हम खो चुके हों। कुछ प्रयास करने पड़े, कुछ जो है उसके लिए हमने एक कमेटी को बनाया, उस कमेटी ने डिटेल्ड डिस्कशन किया, सारे चीज़ों को खोजा, क्योंकि बहुत सारे चित्र ऐसे थे जिसमें एक से ज़्यादा का जो है चित्रकारों ने कंट्रीब्यूट किया था
और उन सबको भी खोज करके उनका नाम जो है, उनके चित्र, उनका फोटो सहित उस बुक में छापा है, ताकि उनकी स्मृति जो है स्थायी बनी रहे, हमेशा बनी रहे। अगर विश्व के दृष्टिकोण से देखें, अमेरिका का संविधान, जिसको अभी 250 वर्ष होने वाले हैं 2 महीने बाद, उन्होंने 50 साल पर, 100 साल पर, 150 साल पर, 200 साल पर हमेशा इस तरह के सेलिब्रेशन किए हैं, ताकि संविधान और संविधान को निर्माण करने की प्रक्रिया और उसके पीछे का उद्देश्य जो है वो हमेशा लोगों के मानस पटल पर रहे, ताकि संविधान का सम्मान बना रहे। इस दृष्टिकोण से जो है हमारे यहाँ 75 साल के पूरे होने पर इस तरह का वृहत आयोजन देश के आम नागरिक को संविधान के साथ में जोड़ने का कारक बनेगा, माध्यम बनेगा। चलिए, धन्यवाद। और कुछ या 102 दीजिए। सर, 75 वर्ष का सेलिब्रेशन कर रहे हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन का। सब संविधान में बहुत सारे बदलाव आए हैं जब से लेके अब तक, और मोदी सरकार ने भी बहुत से बदलाव किए। जो अंग्रेजों के कानून थे उनको बदला, जिस पर विपक्ष ने उन पर ये आरोप लगाया कि वो पूरे कानून को, पूरे संविधान को बदलना चाहते हैं। क्या संविधान को बदलना इतना आसान है? आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे लगता है ये तो आवश्यकता नहीं है। आपका प्रश्न आप नहीं खुद ही है। प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। 71 आप पूछ रहे हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान को जीवंत संविधान की ऐसी संकल्पना की थी, और वो ये मानते थे, ये जानते थे भी कि समय के परिवर्तन के साथ, देश के विकास के साथ बहुत सारी चीजों के परिवर्तन की आवश्यकता होगी। और हम सब ने देखा कि पिछले इस 75 साल की लंबी यात्रा में अनेक परिवर्तन, समयानुकूल, समय के लिए आवश्यक परिवर्तन, संविधान निर्माताओं की कल्पना के अनुरूप देश की सरकारों ने जब जो चाहते लोकसभाओं में, जो और राज्यसभाओं में बहुमत के साथ पारित करके किए हैं। और ये प्रक्रिया देश के उद्विकास के साथ, देश के इवोल्यूशन के साथ में अनवरत चलती रहेगी। यही संविधान की जीवंतता का परिचय है। अनिल हांडा, लोकतंत्र की शान। अग्रिम बधाई। ट्रांसलेशन का जो एरिया है, देयर इज अ ग्रे स्पॉट जब आप किसी चीज को ट्रांसलेट करते हैं, तो हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट? ट्रांसलेशन का क्या प्रॉब्लम? ट्रांसलेशन को वेट कैसे करते हैं ऐसे? क्योंकि अगर कई देखिए, भाषाओं में भारत में हम भारत की जितनी भी हमारी स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, उनमें ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन ऑथेंटिक, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड हो, वेट हो, इसको करने की व्यवस्था बनी हुई है। गजट नोटिफिकेशन में भी उसकी व्यवस्था बनी हुई है। विधि विभाग उसके लिए पूरा एक डिवीजन काम करता है। माननीय अर्जुन राम जी और विस्तार से उस पर कहेंगे। मुझे आप लगता क्या है कि पूछना क्या चाहते हो उसमें? क्या पूछना? उसकी पूछना validity ये क्या? चाहता हूँ कि जो टेक्निकली भाव- कोई टेक्निकली ट्रांसलेशन नहीं करते हैं। नहीं, उसमें पूरे जो उसमें समझदार लोग होते हैं उस भाषा के, उन भाषा से कमिटी बनी हुई है, उसका वेट होता है, उसके बाद आगे भी देखा जाता है, उसके बाद आकर विषय नहीं, आता है। उसमें यह है कि जो भाव है वो तो और आप भाव अगर- भाव हाँ, भाव भाव जो हमारे ट्रांसलेशन में नहीं मरता है जी। आप मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ। साहित्य अकेडमी है और एक सेंटर फॉर लैंग्वेजेस है मैसूर में। ये काम उनके माध्यम से किया जाता है टू प्रिजर्व द इंटेग्रिटी ऑफ व्हाट वाज इंटेंडेड। My submission would be like if many languages have been translated, so जो भाव है वो तो अपने हिसाब से ही होगा अवसर